Hi students, here I am back with another video on integration. Here I will be solving two very important questions on integration. These two are examples in your textbook and they are very long questions. First is example 36. I have a question like 0 to pi by 2 log sin x dx. अब इसको कैसे करोगे? प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? log of sin of pi by 2 minus x. तो log of sin of pi by 2 minus x क्या हो जाता है? log cos x. अब इसको 1 मार्क कर दो, इसको 2 मार्क कर दो. एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं हम. So what do I get? 2i is equals to 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x. अब log की प्रॉपर्टी log a plus log b gives me what? log ab. Before applying that property, whatever I do, I'll add 2 and subtract 2. log 2 ऐड किया, log 2 सब्ट्रैक्ट किया. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि you know sin 2x is what? 2 sin x cos x. So log a plus log b plus log c would give me what? Nothing but log of 2 sin x cos x, जिसको कि I'll write as log sin 2x minus log 2 as it is. Now I've split it into two separate integrals. 0 to pi by 2 log sin 2x minus 0 to pi by 2 log 2 dx. ठीक है. अब मैं क्या इसको I लिख सकती हूँ? Can I write this as I? No. Please be careful. यहाँ log sin x था, वहाँ क्या आया? log sin 2x आया है. तो अब what will I do? I'll take t as 2x. तो dt would be what? 2 dx. अब यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं. x 0 है तो t 0 है. x pi by 2 है तो t क्या है? pi by 2 है मेरे पास. So now this becomes what? 0 to pi. ये सिर्फ i1 में कर रहे हैं. in i1 ये जो t equal to 2x डाल रहे हैं सिर्फ i1 में डाल रही हूँ. So now this becomes what? Nothing but 0 to pi log sin t dt. और यहाँ पर मैंने log 2 कॉमन रख दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1. इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो गया मेरे पास? x हो गया. अब ये जो log sin t dt आया है, can I write it as log sin x? मैं इसको I लिख सकती हूँ? No. Again what happens? यहाँ पर लिमिट 0 to pi है. log sin x dx लिखूँ या log sin t dt लिखूँ? That's one and the same thing by property 0. But यहाँ पर लिमिट क्या है? 0 to pi है. तो मुझे लिमिट को क्या करना है? हाफ करना है. So I am applying property 6. Now what does property 6 state? 0 to 2a fx dx is what? 2 times of 0 to a fx dx. If f of 2a minus x is fx. तो देखो अगर आप यहाँ पर sin of pi minus t करते हो तो वो क्या देता है? sin t देता है. तो f of 2 pi minus x has given me what? fx. अब ये जरूरी नहीं है कि 2 हो यहाँ पर आपके पास. 2a is what? Nothing but pi. तो ये क्या हो जाएगी यहाँ से? This would become what? Nothing but 2 times of 0 to pi by 2 log sin t dt minus यहाँ pi by 2, यहाँ पर log 2 बाहर था, यहाँ क्या आ गया? pi by 2 आ गया minus 0 तो minus pi by 2 log 2 हो गया ये आपके पास. Now I can write this as what? Nothing but my I. This is what? Nothing but my I. So this becomes, here what did I have? I had log sin t dt by 2 और ये जब हो गया 2 times of 0 to pi by 2 log sin t dt. तो ये 2 ऑलरेडी था तो ये 2 कैंसिल हो गया. तो ये वापस से क्या बन गया आपका? I बन गया. इसको sin x dx भी लिख सकते हो. तो ये अब आपका क्या बन गया? I बन गया. तो I इस साइड आ गया तो 2i minus I is equals to minus pi by 2 log 2. यानी I is equals to minus pi by 2 log 2. That gives me my required particular answer. One, that's root cot x plus root tan x. So I take out root tan x common from this. So what am I left with? 1 plus cot x dx. Now मुझे यहाँ पर एक substitution करना पड़ेगा. तो मैं क्या substitution कर रही हूँ? tan x को t नहीं ले रही हूँ, root tan x को t ले रही हूँ.
आपका 2t dt बन जाएगा। तो dx क्या है 2t dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan x की जगह पर आप क्या रखोगे t स्क्वायर रखोगे, तो 2t dt अपॉन 1 प्लस t रेज टू 4 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देती हूँ मेरे i में, तो ये क्या हुआ t इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर 2t dt अपॉन 1 प्लस t रेज टू 4। तो एलसीएम लिया तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt कट गया, so this becomes what 2t4 plus 1 upon 2t square plus 1 upon t4 plus 1. This is what I get from here. Now this is a commonly asked question. खुद से हमारे पास questions आते हैं x square plus 1 upon x4 plus 1 का क्वेश्चन आता है, या फिर x square minus 1 upon x4 plus 1, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। I'll send you those questions. So this is a typical kind of a question. इसमें मुझे क्या करना पड़ता है डिवाइडिंग बाय t स्क्वायर, तो मैं t स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है माइनस का सब्स्टिट्यूशन, जब ऊपर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस का सब्स्टिट्यूशन करो, तो y को क्या लिया t माइनस 1 बाय टी लिया। तो अगर आप देखो t का डेरिवेटिव 1 बाय टी का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, इसलिए इट बिकम्स प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू dy। तो देखो ऊपर यहाँ पर तो क्या आ गया पूरा का पूरा dy आ गया। अब नीचे t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर था, तो उसे मैं क्या लिख सकती हूँ t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 2 बन गया। 2 को मैंने क्या लिख दिया √2 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दैट इज व्हाट 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो 1 बाय √2 tan इनवर्स ऑफ y बाय √2 प्लस c, ये 2 और √2 कैंसिल हो गया तो ये √2 हो गया। अब हमें वैल्यू वापस रिप्लेस करनी है, y की जगह t माइनस 1 बाय t रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और फिर t की जगह पर क्या रख दिया √tan x, यानी t स्क्वायर को क्या रख दिया tan x। सो दैट गिव्स मी माय फाइनल आंसर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज डू पे अटेंशन ऑन दिस। जब भी नीचे x4 आ रहा है यानी कि मुझे क्या करना है डिवाइड बाय x स्क्वायर, प्लीज डू रिमेंबर।